आज की वचन का हमारा जो विषय है, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, प्रभु की आज्ञा मानने से क्या फल मिलता है। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। वर्ष 20 और को लेकर हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु की आज्ञा मानने से ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ क्या फल मिलता ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। है। अगर प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, जो कुछ उसका वचन कहता है वो करते हैं, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो बड़ी आशीष मिलती है। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। अगर जो कुछ उसका वचन करने को कहता है वो नहीं करते, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੋ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, तो शराब भी मिलते ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। हैं। ईश्वर की वचन को तोड़ना, आज्ञा को तोड़ना बड़ी खतरनाक बात है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। अगर वचन को, आज्ञाओं को पूरा करते जाते हैं, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, फिर गड़बड़ कर दिया अपने इलाके। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਦਾ ਏ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਜਾਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਕਿ ਕੋਈ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕੀੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उसने को किसी कॉल करके बुलाता है, ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ, जो पंतो जी आ जाओ, ਆ ਜਾਓ ਮਹੰਤੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। बुलाता है कोई, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? बताओ ਦੱਸੋ। कि बढ़िया भी आ जाओ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸਰੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उसी प्रकार जब आप प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, आपके जीवन में ब्लेसिंग खुद आ जाती है। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ब्लेसिंग को पुकारने की, ठीक है, ब्लेसिंग को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। आपको केवल उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। जितनी आज्ञाओं को, वचनों को पूरा करते जाओ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ब्लेसिंग कुदरती आती जाएंगी। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। एक बार एग्जाम्पल को लेकर शुरू करूंगा। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। कुछ भी पढ़े लूका 5 उसकी 1 से लेकर, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲੂਕਾ 5 ਅਧਿਆਏ उसकी 1 आयत से लेकर, 1 आयत ਤੋਂ ਲੈ के अभी ठीक है, प्लीज मत चढ़ना, अभी ठीक है, प्लीज देखो, फिर कुछ कर दिया गड़बड़। देखो लूका 5 उसकी 1 आयत से लेकर भीतर से गड़बड़ कर दो। पढ़िए लूका 5 का 1 से कोई माइक से आगे बढ़ते माइक से पढ़ते आगे सिस्टर आगे बढ़ते। आज का 1 से लेकर, हालेलुया। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी जी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उनमें से उतरकर जाल धो रहे थे। मछुआरे क्या कर रहे थे? ਮਛੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? मछुआरे क्या कर रहे थे? ਮਛੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? जाल धो रहे थे। ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ। जी काम को खत्म कर दिया। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कुछ भी मच्छी नहीं मिली थी। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। आगे बढ़िए, आगे क्या हुआ? आगे बढ़िए।
हालेलुया। हाँ जी। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की। यीशु मसीह किसकी नाव पर चढ़े? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਦੀ ਨਾਵ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ? शमौन की नाव। ਸ਼ਮੌਨ ਦੀ ਨਾਵ ਉੱਤੇ, दूसरी पे नहीं चढ़े। ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, जिसकी लिए खुदा की कोई योजना होती है, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। परमेश्वर उसी की जीवन रूपी किस्ती में आएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। आगे क्या हुआ जी? उसने शिमोन की नाव पर चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। शमौन की किस्ती किनारे पे खड़ी थी। ਸ਼ਮੌਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ यीशु मसीह शमौन की किस्ती पर चढ़कर क्या ਤੇ बोले? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਮੌਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? देखिए मान लीजिए किनारा था। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ। शमौन को क्या कहा? ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? थोड़ा सा किनारे से हटाकर अंदर ले। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲ। आगे क्या हुआ जी? तब वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। शमौन जी प्रभु की बात को माना, ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ किस्ती को किनारे से आगे कर लिया। ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। प्रभु की बात को माना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ। आज का विषय क्या है? ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ? प्रभु की आज्ञा को मानने का फल। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ। शमौन जी प्रभु की आज्ञा माने, ਸ਼ਮੌਨ ने ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ किस्ती को किनारे से थोड़ा सा आगे ले चले। ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਵ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। आगे देखिए क्या हुआ? जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल। देखिए जब शमौन जी किस्ती को किनारे से थोड़ा अंदर कर लिया, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਾਵ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ फिर शमौन को बिना क्या दी। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। दूसरी बात बिना क्या दी। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। क्या दी? ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ? आप इसको गहरे में ले जाओ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। झील की गहरे में ले जाओ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਗਹਿਰੀ ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। दूसरी बार आज्ञा फिर दी। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन पतरस ने क्या किया? दूसरी बार भी आज्ञा माने, ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। गहरे में ले गया। ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? इससे तो जाल डाल। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਜਾਲ ਪਾ। आगे क्या हुआ? शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। देखिए शमौन ने प्रभु को क्या कहा? ਦੇਖੋ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ? वो तो कहते था कि जाल डाल, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਪਾਈਏ, लेकिन हमने तो सारी रात मेहनत ਪਰ की, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, अभी तो कुछ मछली मिली नहीं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। हमने सारी रात मेहनत ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। की। रात मेहनत करने का मतलब ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ अंधेरे में मेहनत। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ। अंधेरे का मतलब ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ प्रभु से दूर होकर मेहनत करना। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, आप भी रह के मेहनत करना। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। इस बार आप लोग प्रभु से दूर होकर मेहनत करते हैं, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, उसका फल निष्फल होगा। ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। मुझे हमने तो सारी रात मेहनत की, ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, कुछ मिला नहीं। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। आगे क्या हुआ? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। पहली तेरी दो बार आज्ञा माने, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ तੇरी दो वारी आज्ञा ਮੰਨੀ। दूसरी बात तुझे किनारे से हटाने, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਨਾਵ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ, पीछे किनारे से हटा, ਅਸੀਂ ਨਾਵ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈ। फिर तुझे गहरे में ले ਫਿਰ चल, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ, तेरी आज्ञा फिर माने, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, तुझे पे ले आया, ਫਿਰ ਗਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। तो कहीं जाल डाल। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਲ ਪਾ। प्रभु ਪ੍ਰਭੂ प्लीज 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 नहीं छेड़ना। इको जगह दे। प्रभु ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ प्रभु तीसरी बार भी तेरी आज्ञा मानूंगा, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। अगर तू कहेगा, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ, अगर तू कहता है ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ है, कृपा करके मेरी बाइक को छोड़ देना, बिल्कुल ना चढ़े प्लीज। देखो 5 मिनट जॉन जी पर उसको गड़बड़ करे जा रहे हैं। अगर तू कहेगा ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਵੇਂਗਾ तो मैं जाल को फिर भी ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ डालूंगा। ਪਾਵਾਂਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बेशक मुझे सारी रात कुछ नहीं मिला, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, फिर भी जाल पाऊंगा। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। आगे क्या हुआ? तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर ली। शमौन जी प्रभु की तरफ से जाल डाला, ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ तो क्या किया? ਤਾਂ क्या हो ਕੀ गया? ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? मछली
मच्छियां घेर लाए। लिखिया कि बहुत सारी मच्छियां ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆਏ। सारी रात जाल डाला था, कुछ नहीं मिला था। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। प्रभु की कहने से जाल पाया। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਲ ਪਾਇਆ बहुत सी मच्छियां ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੱਛੀਆਂ घेर लाए। ਘੇਰ ਲਿਆਏ। हालेलुया हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मच्छियां कहां से आ गई? ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? सारी रात मेहनत की, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, मच्छी नहीं मिली। ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। प्रभु की कहने से जाल पाया। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, आज्ञा से जाल पाया। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲ ਪਾਇਆ बहुत सी मच्छियां घेर ਤੇ लाए। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆਏ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के लोगों, आज का मेरा वचन का विषय क्या है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ? जब तक आप प्रभु की आज्ञा के मुताबिक जीवन नहीं जियोगे, ਜਦ तक ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, अपनी मर्जी से जीवन जियोगे, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਓਗੇ, आपकी मेहनत बेकार जा सकती ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। है। कुछ लोग मसीह को कबूल तो कर लेते ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, हैं, मसीह के वचनों का पालन नहीं करते, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मसीह की आज्ञाओं के पालन के मुताबिक नहीं चलते, ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, अपनी मर्जी की भक्ति करते हैं, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, अपनी मर्जी से काम करते हैं, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, मर्जी से जीवन जियो, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, मर्जी से आगे बढ़ो, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, मर्जी की पसंद के कपड़े, ਆਪਣੀ पसंद ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, पसंद का खाना पीना ਆਪਣੀ खाते, पसंद ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, पसंद का जीवन जीते। ਆਪਣੀ पसंद ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। शमौन पतरस ने क्या कहा? ਪਰ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, प्रभु तब तो कुछ नहीं मिला, ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, लेकिन प्रभु अब तूने मुझे कहा है, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, तूने कहा किनारे से हटा ले, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ मैंने तेरी आज्ञा मानी, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ तूने ਮੰਨਿਆ, कहा कहने में ले चल, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ मैंने ਜਾ, तेरी आज्ञा मानी, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, अब तूने कहा मच्छी डालने के लिए जाल डाल, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲ अब भी तेरे कहने से तेरी आज्ञा से जाल डालूंगा। ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। बेशक मुझे सारी रात कुछ नहीं मिला, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੁਝ मुझे ਨਹੀਂ तो ਮਿਲਿਆ, लगता है ये झील बेकार है, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਝੀਲ ਹੀ बेकार है, लेकिन तूने कहा पर तुझसे क्या तेरी आज्ञा को मानूंगा, तेरी आज्ञा ਨੂੰ मैं फिर से मनाऊंगा, जाल डालूंगा। फिर तो जाल जब पाऊंगा। उसने प्रभु के आज्ञा से जाल डाला, उन्होंने प्रभु की आज्ञा लेके जाल पाया, उसी झील के अंदर उसे ही झील दे अंदर झील भी वही थी, झील भी होई उसी, जाल भी वही था, जाल भी होई उसी, किश्ती भी वही थी, किश्ती भी होई उसी, मच्छियां घेर ला। मच्छियां नु पकड़ लिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर दे बच्चों, आप कहते हैं, मेरी पत्नी तो अच्छी नहीं, मैं तो उसको छोड़ दूंगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ। पत्नी आपकी वही होगी, ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀਓ ਹੋਵੇਗੀ, घर आपका वही होगा, ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀਓ ਹੋਵੇਗਾ, आपका काम वही होगा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹੋਵੇਗਾ, उसमें बरकत आ जाएगी। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। आप प्रभु की आज्ञा के मुताबिक जीवन जियो, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, घर बदलने की जरूरत नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ पड़ेगी, ਪਵੇਗੀ, आपको पत्नी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, बहनों आपको पति बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, आपको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पड़ेगी। ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। अगर कोई व्यक्ति कपड़े बदल के चिट्टे भगवे कपड़े पहन लेता है, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ अपने ਹੈ, नाम को बदलकर बाइबल में से रख लेता है, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, अपने बालों को बड़ा बड़ा कर लेता है, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ लंबा सा ਹੈ, क्रॉस लटका के चलता है, ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ उसके ਕਰਦਾ, वचन का पालन नहीं करता। ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। याद रखो, आपका लंबा क्रॉस, आपके छिटे कपड़े भगवे कपड़े आपको बचा नहीं पाएंगे। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਗਏ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ बाइबल ਸਕਣਗੇ। में से रखा गया नाम आपको बचा नहीं पाएगा। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। आपकी किस्ती वही होगी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। प्रभु ने शमौन को कहा, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, शमौन तेरी किस्ती भी यही होगी, ਸ਼ਮੌਨ ਤੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਇਹੀ तेरा ਹੋਵੇਗੀ, जाल भी यही होगा, ਤੇਰਾ ਜਾਲ ਵੀ ਇਹੀ तेरी ਹੋਵੇਗਾ, किस्ती भी यही होगी, ਤੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, झील भी यही होगी, ਝੀਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। तुझे इसी में से मच्छी मिलेगी, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ इसके ਮਿਲਣਗੀਆਂ, बीच में से मच्छी मिलेगी। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। एश नूरपुर के
लोगों आपका घर वही होगा, आई ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, आपका कारोबार भी होगा, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਉਹੀ आपकी ਹੋਵੇਗਾ, पत्नी में वही ਤੁਹਾਡੀ होगा, ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, आपका पति में वही ਤੁਹਾਡਾ होगा, ਪਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, आपके बच्चे में वही ਤੁਹਾਡੇ होगा। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। परमेश्वर उन्हीं में से बरकत देगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ उन्हीं में ਦੇਵੇਗਾ, से बरकत देगा, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। लेकिन आप उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत अगर ਹੈ। उसकी आज्ञाओं को तोड़ोगे, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, जितना मर्जी भक्ति कर लो, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ जितना ਲਓ, मर्जी चर्च में झाड़ू पोछा लगा लो, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਗਾ जितना ਲਓ, मर्जी चिट्टे कपड़े पहन लो, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, आपको कुछ नहीं मिलने ਤੁਹਾਨੂੰ वाला। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। मेरी आज्ञा मानेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। बोलो जी, ਬੋਲੋ ਜੀ। जहाज बनाओ। प्रभु यस परमेश्वर यहोवा ने नूह ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲੈ। माने ਨੂਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, जहाज बनाया, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। बातें करते रहे, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। आया ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਆਇਆ, तो के परिवार के 8 लोग बचाए। ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਜਨ ਬਚਾਏ ਗਏ। से बरकत मिली। ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ। के बाद भी आदम बाबा जी आज्ञा की माने। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। जी कहता एक वृक्ष का फल नहीं खाना। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। उस वृक्ष का नाम क्या था? ਉਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼। सभी वृक्षों का फल खा सकता है, ਬਾਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, उसका फल नहीं खाना। ਪਰ ਇਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। तो खाएगा उस दिन मर जाए। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। बाबा जी आज्ञा नहीं माने। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, आज्ञा को तोड़ दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। उसके फल को तोड़ के ਉਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। श्राप आ गया। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਗਿਆ। के भाग से बाहर निकाल। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। अब्राहम ने आज्ञा मानी। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। अब्राहम को क्या क्या तो मेरी आज्ञा मानेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। बोलो जी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਜੀ, जी घर को छोड़ दे। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। अब्राहम ने कोई क्वेश्चन किया, ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, मैं कहाँ जाऊंगा, गुजारा कैसे होगा? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ होਵੇਗਾ, मेरी पत्नी का गुजारा कैसे होगा? ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, घर कहाँ पर बनेगा? ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। कुछ नहीं पूछा। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। जी आज्ञा माने, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, छोड़ दिया। ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 100 साल की उम्र में बेटे की आशीष 100 मिली। ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਲਈ। बेटा इसहाक बड़ा हो गया, थोड़ा सा। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਸਹਾਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, परमेश्वर ने कहा, ये मेरी आज्ञा मानेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। बोलो परमेश्वर जी, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, इसको मोरिया पहाड़ पर ले जाओ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮੋਰਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, जाके बलि चढ़ा दे। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦੇ। अरे जो आज्ञा महाराज, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, पहाड़ पर ले गया। ਮੋਰਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। लकड़ी छीन दी गई। ਲੱਕੜੀਆਂ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। अपने बेटे इसहाक को लिटा दिया ਆਪਣੇ उसके ऊपर। ਬੇਟੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, मैंने तुझे चेक कर लिया, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ तू ਲਿਆ, मेरी आज्ञा का पालन करता है। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ इसकी ਹੈ। बलि में चढ़ा। ਇਸ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਚੜਾ, पीछे देख बलि का मेंढा तैयार है। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਬਲੀ ਲਈ ਮੇਂਢਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। आज्ञा पालन करने से इब्राहिम को परमेश्वर ने विश्वासियों का पिता ठहराया। ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। हाँ, कोई उसकी आज्ञाओं में चलता है, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, परमेश्वर उसको बरकतें भर के देता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। मूसा को परमेश्वर ने कहा तू मिस्र देश में जा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਵੱਲ ਜਾ। मूसा ने पहले तो कहा मेरा गला ठीक नहीं, मेरी आवाज ठीक नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मूसा ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। परमेश्वर ने क्या कहा? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? सवाल ये नहीं तेरा गला कैसा है, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, सवाल ये नहीं तेरी आवाज कैसी है, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। तेरे दिल से मेरा दिल लग गया है। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। तुझे ही जाना, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, तुझे ही जाना। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। परमेश्वर चाहता किसी और को भी भेज सकता था, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन उसके दिल से दिल लग गया। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ उसने ਗਿਆ। कहा जो आज्ञा परमेश्वर ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਗਿਆ मिस्र ਪਰਮੇਸ਼ਰ देश में गया, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, इस्राएलियों को आजाद करा के लाया। ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। उसकी आज्ञा में जितना चलते जाओगे ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, आपको बरकतों को बुलाने की जरूरत नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पड़ेगी। ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਜਾਵੇਗੀ। 38 साल का रोगी कुंड पर बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੰਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। एक दिन सच्ची सरकार सच्चा परमेश्वर उसके पास पहुंच गया। एक दिन सच्ची सरकार सच्चा परमेश्वर उसके कोल पहुंच उसको गया। पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने पूछा कि तेनू की चाहिए? हे प्रभु मैं चलना चाहता हूँ। हे प्रभु मैं चलना चाहता प्रभु ने हूँ। कहा जा चल फिर। प्रभु ने क्या कि जा चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। शिमशोन जब तक प्रभु की आज्ञा में चलता रहा, शिमशोन जब तक प्रभु की आज्ञा दे विच चलदा गया। सामर्थ्य, तकड़ी सामर्थी, तकड़ी सामर्थ्य, तकड़ी सामर्थी उसको छूने नहीं पाया। दुष्ट उसनु छू नहीं पाया। जब उसने आज्ञा को तोड़ दिया, ते जदों उसने आज्ञा नु तोड़ उसके दिया, चरित्र में खराबी आ गई। उसके कैरेक्टर विच खराबी आ गई। बाइबल में लिखा उसकी सामर्थ को परमेश्वर ने वापस बुला लिया। बाइबल में लिखा कि उसकी सामर्थ को परमेश्वर ने वापस ले लिया। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा नु तोड़ दिया, उसके जीवन में श्राप आ गया। उसके जीवन में श्राप आ गया। चरित्र की खराबी रखने वालों ध्यान से सुन लो। चरित्र की खराबी रखने वाले ध्यान दे नाल सुन लो। चरित्र की खराबी आपका पाप आपकी सामर्थ को काटेगा। चरित्र दी जड़ी गलती होंदी है, चरित्र जड़ा पाप होंदा है, वो तोड़ी सामर्थ नु कट देवेगा। आपका पाप आपकी सामर्थ को काटने की कैंची है। तोड़ा पाप जड़ी है तोड़ी सामर्थ दी कैंची है। आज्ञाओं को तोड़ना आपकी सामर्थ को काटेगा। आज्ञा नु कटना तोड़ना समझ लो तोड़ी सामर्थ दी कैंची नु कटना। शिमशोन ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, शिमशोन ने प्रभु दी आज्ञा नु तोड़या। परमेश्वर ने उसकी सामर्थ को काट दिया। परमेश्वर ने उसकी सामर्थ नु कट दिया। एली के बच्चे पाप करते थे, एली दे बच्चे पाप करते थे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा करते थे, परमेश्वर की आज्ञा नु तोड़या करते परमेश्वर थे, के वचन को तोड़ा करते थे। परमेश्वर दे वचन नु तोड़या करते थे। एक दिन उनका नाश हो गया। एक दिन उन्हां दा नाश हो गया। जितना आप गंदी सोच रखोगे, जितना ज्यादा तुसी गंदी सोच रखोगे, अपने चरित्र को गंदा रखोगे, अपने चरित्र नु गंदा रखोगे, अपने विचारों को गंदा रखोगे, अपने विचारों नु गंदा समझ रखोगे, लो आप उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हो। समझ लो तुसी उसकी आज्ञा नु तोड़ रहे हो। एक दिन श्राप आपके ऊपर आ सकता है। एक दिन श्राप ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विधवा को एलीशा ने जाकर क्या कहा? एलिया ने विधवा नु जाके की किया? बेटी रोटी ला, मेरे लिए रोटी बना के लेके आ। फिर लगा पानी ला, फिर क्या कि पानी भी लेके आ। फिर कहा पानी ला, पहला क्या पानी लेके आ। फिर जब लड़ी जाने लग गई, फिर ਜਦੋਂ विधवा जान लग पई, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ रोक लिया। मेरे लिए रोटी भी बना ले आई। विधवा जी क्या कहा? विधवा ने की किया? थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੈਦਾ ਹੈ, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा ਜਿਹਾ तेल है, कैसी रोटी बनाकर कितना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ रोटी लेके आऊं? मैं लकड़ी चुनकर लेकर जाऊं? मैं लकड़ियां चुन ले आई हूं। सोचती हूँ घर जाके एक टुकड़ा रोटी बनाऊं। सोच दिया घर जाके छोटा रोटी का टुकड़ा बनाऊं। मेरा बच्चा भी भूखा मर रहा है, मेरा बच्चा भी भूखा है। सोचती हूँ उसको भी खिलाऊंगी, सोच दिया कि ਉਹਨੂੰ भी खुद खिलावांगी, भी खाऊंगी, खुद भी खावांगी, फिर मर ਤੇ जाऊंगी। ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। एलिया ने क्या कहा? एलिया ने उसਨੂੰ ਕੀ पहले ਕਿਹਾ? तू मेरी आज्ञा को मान, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ पहले ਮੰਨ। जो मैं कहता हूँ वो कर। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ। विधवा घर पे गई, ਵਿਧਵਾ ਕਰਦੇ थोड़ा ਗਈ। सा मैदा, थोड़ी सा तेल जो पड़ा था, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ उसको ਸੀ, एक छोटी सी रोटी बनाई। ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ। रोटी को देखकर बच्चा रो रहा होगा, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ मम्मी मेरे को रोटी ਕਿ देगी, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ मम्मी ਦੇਵੇਗੀ, मुझे रोटी देगी। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ बच्चे को ਦੇਵੇਗੀ। रोता भी लगता, छोड़कर एलिया को रोटी लाकर दे दी। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਗਈ। एलिया की आज्ञा को माना, ਏਲੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਗਈ। परमेश्वर जो सेवकों की आज्ञा को मानता, समझो परमेश्वर की आज्ञा को मानता ਜਿਹੜਾ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। एलिया को रोटी लाकर दी। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। एलिया ने खुश होकर क्या उसको वरदान दिया? ਏਲੀਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ? सारी दुनिया में काल पड़ जाएगा, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, तेरे घर में रोटी की कमी नहीं ਪਰ होगी। ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। बाइबल में लिखा है सब जगह काल पड़ गया था, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ उसके ਸੀ, घर में रोटी की कमी नहीं ਪਰ थी, ਉਸਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। उसके घर में पूरी छोले बन रहे थे। ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ, लोग उसके घर में आके खाते थे। ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ और ਸੀ। वो विधवा क्या कहती होगी? ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? मिठा लगदा एलिया तेरा तेल, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏਲੀਆ ਤੇਰਾ ਤੇਲ, वेले अमृत दे। ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। वाह, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। कुछ एलीशा के पास आया, ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, गेट पे जाके खड़ गया। ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। उसने सोचा होगा एलीशा मुझे ऊपर बुलाएगा, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਸੱਦੇਗਾ, क्योंकि मैं
सेनापति हूँ, क्योंकि मैं तो सेनापति हाँ। सिर पे हाथ रख के ले हैंड प्रेयर करेगा। मेरे सिर ते हੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ले हैंड प्रेयर मेरे लिए करेगा। अलीशा को समाचार मिला, ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, अलीशा को समाचार मिला, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ, कोई सेनापति आपके गेट पे आया, ਕੋਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, कोड रखा है, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, आपसे प्रार्थना कर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ आपके ਹੈ, सिर पे हाथ रखवाने आया। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। अलीशा ने क्या कहा? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? जाकर उसको आज्ञा दे दो, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, यरदन नदी पे जा, ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ, 7 बार डुबकी लगा, 7 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ, 8 बार नहीं, 8 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 6 बार भी नहीं, 6 ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, 7 बार डुबकी लगा। 7 ਵਾਰੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ। जब नामान को ये संदेशा दिया गया, ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ एलीशा ने तुझे कुछ करने की आज्ञा दी कि है, अलीशा ने तेनू कुछ करन ली आज्ञा देती है। वापिस चला गया, नमान बुरा मन के वापस चल पिया, वापिस फिर से आ गया, वापस फिर तो आया, किसी ने समझाया, किसी ने उन्हें समझाया, वापिस आ गया, वापस आ गया, सीधा यरदन नदी पे गया, सीधा यरदन नदी ते चला, 7 बार डुबकी लगाई, 7 बारी जाके डुबकी लगाई, 7 बार डुबकी लगाई। 7 बारी डुबकी बाइबल लगाई। में लिखा उसका खोड़ चला गया, बाइबल कहते हैं उसका कोड दूर हो गया, बाइबल में लिखा खोड़ चला गया, बाइबल कहते हैं उसका कोड चला गया, सीधा एलीशा के पास आया, सीधा अलीशा दे कोड जो गया, तूने आज्ञा दी थी जो तुसा आज्ञा देती सी मैंने वही किया, मैं ओयो कीती, देख मेरा खोड़ ठीक हो देख गया। मेरा कोड चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जितना उसकी आज्ञा का पालन करोगे, जिन्ना तुसी उस दी आज्ञा दा पालन उसके करोगे, सेवकों की आज्ञा का पालन करो, उसदे सेवका दी आज्ञा दा पालन करोगे, चमत्कार आपके पीछे पीछे आएंगे। चमत्कार ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ। चमत्कारों के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। चमत्कारां ने किते जाਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। आज लोग चमत्कारी बाबों को ढूंढते हैं, ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, चमत्कारी बाबों को ढूंढते हैं। ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ उधर ਨੇ। चमत्कारी बाबा का क्रूसेड है, ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਰੂਸੇਡ उधर ਹੈ, चमत्कारी बाबा की कन्वेंशन है। ਉਹਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। चमत्कारों के पीछे ना भागो, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, चमत्कारों को आपके पीछे आना पड़ेगा। ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ, चमत्कार आपके पीछे आएंगे, ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੇ, चमत्कार आपको ढूंढते आएंगे। ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਆਣਗੇ। एलीशा के पीछे चमत्कार, उसके नामान के पीछे चमत्कार भाग के आए। नमान ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। योना को परमेश्वर ने कहा, नीनवे को जा। परमेश्वर ने योना नु किया कि नीनवे नु जा, वो तरशीश को चला गया, वो तरशीश नु चला गया, आज्ञा को तोड़ के दूसरी तरफ चला गया। आज्ञा नु तोड़ के दूसरी वाल चल पिया। क्या हो गया की फिर? हो गया फिर? अगर आज्ञा को तोड़ा तो क्या हो जेकर गया? आज्ञा नु तोड़े तो की होया? मगरमच्छ के मुंह में जाना पड़ा। मगरमच्छ दे पेट विच जाना पिया। जब पेट में 3 दिन 3 रात रहा, जदों मगरमच्छ दे पेट विच 3 दिन 3 रात रहा, बाइबल में लिखा अंदर बैठा प्रार्थना कर रहा था। बाइबल में लिखा कि अंदर बैठा प्रार्थना कर रहा अब वो सी। अपनी पत्नी के नाश्ते को याद कर रहा ਉਹਨੂੰ था, अपनी पत्नी दे नाश्ते नु याद कर रहा अब वो सी। कपड़े प्रेस वाले याद कर रहा था, ਉਹਨੂੰ प्रेस किते हुए कपड़ियां नु याद कर अब रहा अपना सी। पेस्ट को याद कर रहा ਉਹਨੂੰ था, अपने पेस्ट नु याद कर अब रहा उसको सी। लंच नहीं मिल रहा था, ਉਹਨੂੰ लंच नहीं मिल रहा अब सी। उसको बिस्तर भी नहीं मिल रहा ਉਹਨੂੰ था। बिस्तर भी नहीं मिल रहा सी। मगरमच्छ के पेट में तौबा कर रहा है, मगरमच्छ दे पेट विच बैठा तौबा कर रहा है। परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मैनू क्षमा कर आगे से दियो, तेरी आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, अगों तो मैं तेरी आज्ञा नु नहीं मुझे तोड़ूंगा, यहाँ से बाहर निकाल दे। मैनू इत्थों बाहर कढ दियो। मगरमच्छ के पेट में कितना जहर होता है, मगरमच्छ दे पेट विच कितना जहर हुंदा है, फिर भी प्रभु अपने सेवक को उसके बीच में जिंदा रखे हुए कि हैं, परमेश्वर अपने सेवक को उसके पेट विच भी जिंदा रखे हुए उसके हैं, पेट में जिंदा रखे हुए उसके हैं। पेट विच जिंदा रखे जब हुए उसने हैं। तौबा कर ली, जदों ने तौबा कर ली थी, परमेश्वर ने मगरमच्छ को कह दिया, परमेश्वर ने मगरमच्छ नु कह तो इसको दिया, तो हाथ नहीं लगाना, इनू दंद नहीं इसको लगाने, कुछ नहीं कहना, इनू कुछ नहीं कहना, इसको समुद्र के किनारे जाके उगल इनू दे। समुद्र के किनारे जाके सट उसने दे। ऐसा ही किया, लहरा को समुद्र के किनारे जाके निकाल, मगरमच्छ ने परमेश्वर की आज्ञा मन के ओदा ही किता ते समुद्र के किनारे जाके फिर वो छड़ दिता। परमेश्वर के कहने से नीनवे को गया। फिर वो परमेश्वर के कहने अनुसार नीनवे नु गया। जब आप आज्ञा को तोड़कर आगे बढ़ोगे, जदों तुसी आज्ञा नु तोड़ के आगे उसके बढ़ोगे, वचनों को तोड़कर आगे उसके बढ़ोगे, वचनां नु तोड़ के आगे सेवकों की बढ़ोगे, आज्ञा के खिलाफ चलोगे, सेवका दी आज्ञा दे खिलाफ चलोगे, उससे खड़ी श्राप आपका पीछा उससे करे। कड़ी श्राप तोड़ा पीछा करेंगे। कितने लोग के घरों में शराब इसलिए आते हैं, कितने लोगों दे घरां विच श्राप इसलिए आते हैं, परेशानियां इसलिए आती हैं, परेशानियां इसलिए आती हैं परमेश्वर के वचनों को तोड़ते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर दे वचनां नु तोड़ते रहते परमेश्वर हैं, की आज्ञाओं को तोड़ते रहते हैं, परमेश्वर दी आज्ञा नु तोड़ते उसके रहते हैं, सेवकों की आज्ञाओं को तुच्छ समझते उसने हैं, सेवका दी आज्ञा नु तुच्छ जानते उसके हैं, सेवकों की सुनना परमेश्वर की सुनना है। उसने सेवका दी सुनना समझो परमेश्वर दी सुनना
सुनना है। जक्कई गुलर के पेड़ पे बैठ गया। जक्कई गुलर दे पेड़ उत्ते चढ़िया होया। वो प्रभु को देख रहा था। ओ प्रभु यीशु ਨੂੰ देख ਰਿਹਾ ਸੀ क्योंकि वो नाटा था। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ जब वो ਸੀ। देख रहा था प्रभु को जाते, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, प्रभु की निगाह उस पे पड़ गई। ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। जक्कई नीचे उतरा। जक्कई नीचे आ जा, नीचे आजा। नीचे आ जा। जक्कई ने प्रभु की आज्ञा माने। जक्कई ने प्रभु यीशु ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ फिर ਮੰਨਿਆ। प्रभु ने उसको एक और आज्ञा दी। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। जक्कई जक्कई मुझे तेरे घर जाना है। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। मुझे तो अपने घर ले जा सकता। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जक्कई ने तो सोचा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ से पिलाऊंगा, जक्कई ने ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ, चाय कहाँ से पिलाऊंगा, ਚਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ, कॉफी कहाँ से पिलाऊंगा। ਕੌਫੀ ਕਿੱਥੋਂ मैं ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ। तो नाटा हूँ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਵਾਂ। अगर प्रभु को अपने घर लेकर जाऊंगा, ਜੇ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ लोग कहेंगे वो तो ईसाई बन गया। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। वो देखो ईसाई बन गया। ਉਹ ਦੇਖੋ ਈਸਾਈ ਬਣ चुंगी ਗਿਆ, लेने वालों का दोस्त बन गया। ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। जब प्रभु ने उसको दूसरी आज्ञा दी, ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, जब उसको दूसरी आज्ञा दी, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, मुझे तेरे घर पे जाना। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। जक्कई ने क्या कहा, जक्कई ने की किया, चलो प्रभु, ਚਲੋ ਪ੍ਰਭु, कितनी अच्छी बात ਕਿੰਨੀ होगी ਚੰਗੀ ਗੱਲ अगर ਹੋਵੇਗੀ आप मेरे साथ चले। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋਗੇ। जक्कई ने दूसरी आज्ञा भी मानी। जक्कई ने दूसरी आज्ञा भी ਮੰਨੀ। कर लिया गया। ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। क्या ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, उसके घर जाकर क्या बोला, ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? जिस घर में उतार आया, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉद्धार ਆਇਆ ਹੈ। जिस घर में उतार ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉद्धार ਆਇਆ ਹੈ। प्रभु की आज्ञा का पालन करते जाओ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭु ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, बरकतें रिलीज होती जाओ। ਉਹਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। बरकतें उसकी आज्ञाओं के पालन पर करती है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। आज्ञाओं को तोड़ते जाओ। ਜਿੰਨਾ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, को तोड़ते जाओ। ਜਿੰਨਾ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, शराब रिलीज होती ਉਹਨੇ जाएगी। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਝਗੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। जन्म के अंधे को प्रभु ने क्या कहा, ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? उसकी आंखों पर मिट्टी लगाई। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਈ। जा तू सलो के कुंड पे जा, ਜਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਲੋ ਦੇ ਕੁੰਡ ਤੇ ਜਾ, उधर जाकर धो ले। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈ। अब देखिए किसी अंधे को तो प्रभु यीशु कह देते थे जा तू देखने लग जा। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾ, इसकी आंखों पर मिट्टी ਪਰ लगाई, ਇਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਈ। इसको कुछ करने को आज्ञा दी। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। किस लिए आज्ञा दी, ਕਿਸ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ? इसको परखो तो सही ये मेरी बात का पालन करता है कि नहीं। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ किसी ਕਰਦਾ। किसी को प्रभु सीधा प्रार्थना से चंगा कर देता ਕਿਸੇ है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ किसी ਦਿੰਦਾ ਹੈ। किसी को थोड़ा सा आंखों पर मिट्टी की तरह कोई ना कोई देसी जड़ी बूटी के लिए कहता है इसका इस्तेमाल ਤੇ- कर ले। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹੀ ਤੇ ਜਾ ਸ਼ਿਲੋ ਦੀ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਲੈ। ਉਸ अंधे ने ਕਿਸੇ ਨੂੰ प्रभु की ਕਹਿੰਦਾ है। आज्ञा का पालन किया, ਅੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ शिलो ਪਾਲਨ के कुंड ਕੀਤਾ। पे गया, ਸ਼ਿਲੋ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ अपनी ਗਿਆ, आंखों को धोया, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ देखता ਧੋਤਾ, हुआ आ गया। ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ। जितना प्रभु के लोग आपको कुछ करने को कहते हैं, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, उसी तरीके से जीवन जिया करो। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਕਰੋ। जब राजा हिजकिय्याह की मौत का ऑर्डर आ गया, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਿਜਕਿਯਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, यशायाह ने जाकर कह दिया ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ अब ਕਿਹਾ, तू कुछ भी कर ले तेरा दिन खत्म होने वाले हैं। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ करना है कर ले क्योंकि तेरे दिन खत्म होने वाले बाइबल में हैं। लिखा राजा हिजकिय्याह प्रभु के सामने बैठ गया, बाइबल 'ਚ लिखा कि राजा हिजकिय्याह प्रभु दे अगे जाके बैठ प्रभु गया। को क्या कहने लग गया, प्रभु ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ प्रभु ਲੱਗ मेरे ਗਿਆ? बीते वर्षों को चेक कर प्रभु ले, मेरे बीते समय ਨੂੰ चेक मेरे कर बीते ले, महीनों को चेक कर मेरे ले, बीते महीनों ਨੂੰ चेक कर मेरे ले, कामों को चेक कर ले, मेरे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ चेक कर मेरी ले, सोच को चेक कर ले, मेरी सोच ਨੂੰ चेक मेरे कर ले, विचारों को चेक मेरे कर ले। विचारों ਨੂੰ चेक कर ले। मैंने जो कुछ तुझे अच्छा लगा वही किया, जो कुछ तेनू चंगा ਲੱਗਿਆ मैं ओहियो ਕੀਤਾ, जो कुछ तेरे सेवकों को अच्छा लगा वही किया। जो कुछ तेरे सेवकां ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ मैं जब ओहियो परमेश्वर ਕੀਤਾ। ने उसकी बुक को चेक किया, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ उसके ਚੈੱਕ बीते ਕੀਤਾ, वर्षों को चेक किया, ਉਸਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, सारा कुछ सही पाया सारा गया। कुछ सही पाया फिर गया। से यशायाह नबी को कहकर भेज दिया, फिर तो यशायाह नबी ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ उसको ਦਿੱਤਾ, जाकर कह दो ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा ਤੇਰੀ दो, ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ उसकी ਦਿੱਤੀ, उम्र 15 साल और बढ़ा दो। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 15 साल ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। जितने वचनों का पालन करते जाओगे, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ वचन ਜਾਓਗੇ, को पढ़ते उस पर अमल करते जाओगे, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ आपकी बरकतें ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक मरीज डॉक्टर के पास गया, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ये लो 3 टाइम खाने
खानी है, ਕਿ ਇਹ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। 3 टाइम खाना है, 3 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, पानी के साथ खाना है। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। मरीज घर पे आ गया, ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, एक टाइम मेडिसिन खाता है, ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, एक टाइम मेडिसिन खा रहा है, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, एक टाइम मेडिसिन खा रहा है, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, पानी के साथ चाय के साथ खा रहा है। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो चंगा हो जाएगा ਉਹ क्या? ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ? बिल्कुल नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। नहीं, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं किया। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 दिन के बाद मैं डॉक्टर पे गया, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ डॉक्टर साहब मैं तो ठीक नहीं हुआ। ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। डॉक्टर साहब क्या पूछेंगे उसको? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ? जैसा मैंने तुझे आज्ञा दी थी तुझे वैसे किया। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। 3 दिन दवाई खाई, 3 ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਦਾ, पानी के साथ खाया। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ। क्या कहेगा? ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? आपने 3 टाइम कहा था, ਤੁਸੀਂ 3 ਟਾइम ਕਿਹਾ पानी ਸੀ, तो 1 टाइम खाई। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ आपने ਖਾਦੀ। पानी के साथ कहा था, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ पानी ਕਿਹਾ तो ਸੀ, चाय के साथ ਮੈਂ ਤਾਂ खाई। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦੀ। डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर की क्या जब कहेगा? तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ अब तू चंगा कैसे ਤੇ होगा? ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਂਗਾ? हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर कुछ बच्चा माँ बाप की आज्ञा पे ना चले, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੇ, माँ बाप को कैसे लगेगा? ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? अच्छा लगेगा? ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? बिल्कुल नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। बच्चा अपने टीचर की आज्ञा पे ना चले, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੇ, टीचर को कैसे लगेगा? ਉਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? अच्छा नहीं लगेगा, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। जहाँ पे ड्यूटी करते हो, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, किसी भी जिस कंपनी में ड्यूटी करते ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ हो, किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते ਜਾਂ हो, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, वो उसकी आज्ञा भी उसके कानूनों के मुताबिक चलना पड़ेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। उसके मुताबिक नहीं चलोगे, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, उसके मुताबिक नहीं ਉਸ ਦੀ चलोगे, ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, बॉस को कैसा ਫਿਰ लगेगा? ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? अच्छा लगेगा? ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? आओ, ਦੱਸੋ। बिल्कुल ठीक लगेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। जी, देश के कुछ कानून है, संविधान है, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। कुछ देशवासी कानूनों पे ना चले, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, संविधान पे ना चले, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, पुलिस को अच्छा लगेगा? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? नहीं। ਬਿਲकुਲ ਨਹੀਂ। पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर ਪੁਲਿਸ दे, ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। उसको भी देश के कानूनों पे चलना पड़ेगा। ਉਸ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। जब जमीन पर थे, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, अपने पिता की आज्ञा पे चलते थे। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। जॉनसन जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। क्योंकि दिन तक आज्ञा खड़े रहे, ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ, के दिन तक आज्ञा में रहे। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰतिम ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ जब ਕਰ। वो क्रॉस की मौत आने वाली थी, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, यीशु मसीह ने अपने पिता को क्या कहा? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? हे पिता, हो सके ये फैला मुझसे टल जा। हे पिता, हो सके ਤਾਂ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ। अगर नहीं भी पिता, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਤਾ, तेरी मर्जी पूरी हो। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। यीशु मसीह की मर्जी पूरी नहीं ਪ੍ਰਭੂ हुई, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ पिता ਹੋਈ की ਸੀ, मर्जी पूरी हुई थी। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। यीशु मसीह का मकसद था मेरे पिता की मर्जी को पूरा करना, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ मेरे ਕਰਾਂ। पिता की आज्ञा का पालन करो। मैं अपने पिता की आज्ञा का जो पालन कुछ करा। मेरे पिता ने करने को भेजा है, जो कुछ मेरे पिता ने ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, वही करूं। ओयो मैं करा। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा में चलता था, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा से चलते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया इसलिए गया। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ प्रभु ਗਿਆ। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह बाइबल कहते हैं मारे गए, गाड़े गए ते तीसरे दिन मुर्दियां चो जी उठे। 40 दिन अपने चेलों को दिखाई देते रहे। 40 दिनों तक अपने चेलियों को दिखाई देते फिर रहे। जिंदे इस्राएल देश के जैतून पहाड़ से जिंदे स्वर को उठा लिए गए। फिर जिंदे इजराइल पहाड़ दे जो इजराइल देश दे जैतून पहाड़ तो जिंदे आसमान में चक लेते गए। एक भविष्यवाणी हुई, एक भविष्यवाणी उस समय जैसे हुई। तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाता देख रहे हो, जिंदा तुसी इस मनुख दे पुत्र ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ एक ਹੋ। दिन वापिस आता देखोगे। एक दिन ऐसे तरह वापिस आता अभी प्रभु देखोगे। यीशु मसीह 2 बार आएंगे, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2 ਵਾਰ ਆਣਗੇ। एक बार गुप्त आगमन में एक बारी गुप्त आगमन ते बादलों पर ठहर जाएंगे, बदला ते ठहर जाएंगे। अपने चुनी हुई कलीसिया को ऊपर बुला लेंगे अपनी पवित्र कलीसिया ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ और कलीसिया को बादलों से लेकर स्वर्ग पे चले ਤੇ जाएंगे। ਆਪਣੀ कलीसिया
कलीसिया ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ 7 ਜਾਣਗੇ। साल तक कलीसिया स्वर्गों में रहेगी। 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਲੀਸਿया स्वर्ग ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। जमीन पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਕਾਲ और उसके ਹੋਵੇਗਾ। 7 साल बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर लाखों स्वर्गदूतों को लेकर फिर से जैतून पहाड़ पर उतरेंगे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿया ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। उसको बोला जाएगा दूसरा आगमन। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰਾ फिर आगमन। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर 1000 साल तक राज करेंगे। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ एक ਕਰਨਗੇ। ही सरकार होगी तय, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, एक ही राजा होगा। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1000 साल तक राज करेंगे 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, क्योंकि पिता की आज्ञा में चलते थे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ जो ਸੀ। कोई अपने माँ बाप की आज्ञा में चलता ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਟਾਲੋ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ, और तीसरा ਤੇ ਤੀਸਰਾ क्या? ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तीनों की आज्ञा को कभी न टालो। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟਾਲੋ। खुदा की बरकत आएगी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। बाप के आशीर्वाद के बिना सेवकों का आशीर्वाद काम नहीं आएगा। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। सेवकों के आशीर्वाद के बिना खुदा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो एक विश्वासी को प्रभु की आज्ञा में चलना चाहिए कि नहीं? ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? बताओ ਦੱਸੋ, बताओ। ਦੱਸੋ। मुझे भी 30 साल पहले प्रभु ने कुछ आज्ञा दी। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, हरियाणा स्टेट में रहा करता था। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। सीनियर स्कूल का प्रिंसिपल होता था। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जिस क्लास से पास 25 ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਸ। हिंदू गुप्ता परिवार का बच्चा। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। मेरा परिवार करोड़पति परिवार। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ। मुझे भी प्रभु की आज्ञा दी। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। सेवक को मेरे स्कूल में भेजा। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। सेवक के गले में क्रॉस लिखा हुआ था। ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाथ में बाइबल थी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸੀ। मुझे आके बोले, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, प्रिंसिपल साहब ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, आपसे कुछ बातें करनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। थोड़ा सा गुस्सा हो गया। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ तो ਗਿਆ सही लगता है। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। मेरा भी धर्म बदल गया। ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਇਆ उन्होंने ਹੋ। कहा नहीं, ना तू मेरा धर्म बदला, ना मैं किसी का बदलता। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ मेरी ਬਦਲਦਾ। टेबल पर बाइबल रख के चले गए। ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ है ਗਏ। तुम चले गए, कभी कभी समय मिले पढ़ लिया करो। ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। कभी कभी अखबार की तरह खोलता बंद कर देता। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। एक दिन संडे का दिन था जब फंस गया। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਸ ਗਿਆ। जब इस वचन को खोला, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, मेरे सामने यूहन्ना 14 की 27 आयत आई, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਯਹੂਨਾ 14:27 ਆਇਤ ਤੱਕ ਆਈ, जिसमें लिखा था प्रभु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ तो ਦੇ दुनिया ਦੇਵਾਂ नहीं दे सकती। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ जब ਦੇ इस वचन ਸਕਦੀ। को पढ़ा, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, I read this word of God। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਹੈ। जब उस वचन को पढ़ा, ਜਦੋਂ मैं उस वचन ਨੂੰ ਪੜਿਆ, अंदर जिस प्रकार की शांति आ ਅੰਦਰ गई, ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ जिस ਗਈ, शांति की मैं तलाश किया करता ਜਿਸ था। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਿਆ मैंने ਕਰਦਾ सोचा ਸੀ। दिस इज ए बुक ऑफ मैजिक। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ मैंने ਹੈ। थोड़ा सा और पढ़ा, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜ ਲਿਆ, और शांति आ ਹੋਰ गई। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ थोड़ा ਗਈ, सा और पढ़ा, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜਿਆ, और शांति ਹੋਰ आ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ गई। उस ਗਈ। दिन संडे का दिन था। ਉਸ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਦਾ मैंने ਦਿਨ ਸੀ। सोचा वो प्रभु के दास कहकर गए थे ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ कभी ਸੀ संडे को आ जाना। ਕਦੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। मैंने सोचा तो संडे का दिन है। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। जाकर देखता हूँ जब इस वचन को पढ़ने से इतनी शांति, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ पढ़न ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ जब ਸ਼ਾਂਤੀ उधर ਹੈ। जाऊंगा तो पता नहीं क्या मिलेगा। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? चर्च में गया, पीछे बैठ गया, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। वो दान इकट्ठा कर रहे थे, ਉਹ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ फटे ਸੀ। हुए 2 रुपए चंदे में डाले। ਫਟੇ ਹੋਏ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ देखिए ਦਿੱਤੇ। मैं एक प्रिंसिपल स्कूल का होता ਦੇਖੋ था। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ मैंने ਸੀ। सोचा जिनको पहले दान दिया करता था मैं वहाँ सब कुछ चल जाता ਮੈਂ था। ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ऐसे भी चल जाऊंगा। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ये सारे फटे नोट होते चलाया करता। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। उधर भी फटे हुए 2 का नोट डाल के ਉੱਥੇ ਵੀ फिर आ ਫਟੇ गया। ਹੋਏ 2 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ। रात को सो गया। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ जब ਗਿਆ। सुबह सवेरे उठा, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, अखबार को पढ़ा, ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ मेरे ਪੜਿਆ, खिलाफ खबरें आ गई। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ
खबर आ गई फला फला स्कूल का प्रिंसिपल ईसाई बन गया, फलाने फलाने स्कूल के प्रिंसिपल ईसाई बन कल वो गए, चर्च गया था ईसाई बनकर आ गया। कल वो चर्च गए सीधे ईसाई बन मैं गए। थोड़ा सा घबरा गया, मैं थोड़ा जा घबरा अरे गया, सोचा ये तो गड़बड़ हो मैं गया, सोचा था गड़बड़ हो ये गई, तो गलती हो गई, ये तो मेरे तो गलती हो शांति गई, तो आ गई पर ये गड़बड़ भी हो गई। शांति तो आ गई पर गड़बड़ भी हो मैं गई, नास्तिक सा बन गया, मैं नास्तिक जा बन कहने गया, लगता तेरे श्लोक, मैं कहने लगे कि कोई भी परमेश्वर तेरे नहीं, श्लोक, मैं कहने लगा कोई भी सारी परमेश्वर नहीं, भक्ति छोड़ दी। सारी भक्ति नु मैं छोड़ जब देता, कहने लगता कोई परमेश्वर, जब मैं कहने लगा कि कोई परमेश्वर एक नहीं, दिन अंधेरे कमरे के अंदर प्रभु ने दर्शन दिया, एक दिन हनेरे कमरे च प्रभु ने दर्शन दिता, एक रोशनी के बीच में से आवाज आई, एक रोशनी दे विचों आवाज सुनाई माय दी, सन आई हैव चोजन यू। मेरे बेटे मैं तेनु चुनिया है। आप कहते हैं देयर इज नो गॉड, तुसी कहंदे हो कि कोई परमेश्वर मैं नहीं, कहा, प्रभु जब से आपके घर में गया, मैं कह कि प्रभु जी जब तो मैं ਤੁਹਾਡੇ घर विच गया, ये देखो क्या हो गया, आ देखो की हो गया, ये देखो ये क्या छप गया। आ देखो मेरे खिलाफ की छप गया, प्रभु ने एक ही बात प्रभु ने कही, कोई आवाज दी, सारा बोझ मुझ पर डाल दे, सारा बोझ मेरे उत्ते पा दे, सबको सीधा कर मैं दे, सारे नु सीधा कर देवां, सारा बोझ मुझ पर डाल दे। सारा बोझ मेरे उत्ते पा दे। मैंने प्रभु को एक बात कही, मैं प्रभु ने इको गल कही, प्रभु आपको छोड़ना तो नहीं चाहता, प्रभु मैं तन्नू छड़ना तो नहीं चाहता, मुझे शांति बहुत मिली है, मैनू शांति बहुत मिली अच्छा है, बहुत लगा, चंगा बहुत लग्या है, छोड़ना नहीं चाहता, छड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ताकत दो, पर मैनू तुसी ताकत मेरे दियो, अंदर शक्ति भर दो मेरे अंदर शक्ति भर कि दियो, अगर कोई भी मेरा विरोध करे कि जेकर कोई भी मेरा विरोध उसको करे सीधा जवाब दे। तो मैं उन्हें सीधा जवाब दे प्रभु ने सका। कहा तू कल की सुबह जब उठेगा प्रभु ने क्या कि कल सवेरे जब तू उठेगा तू देखेगा तेरे अंदर मेरी सामर्थ होगी। तू देखेगा तेरे अंदर मेरी सामर्थ होगी। अगले दिन सुबह सवेरे जब उठा अगले दिन सवेरे सवेरे जब उठिया एक पवित्र आत्मा की सामर्थ अंदर भर गई। पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर भर गई। मैं स्कूल की सीट पर प्रिंसिपल की सीट पर जाकर बैठा, जब मैं अपने स्कूल में जाके प्रिंसिपल की सीट पे फिर बैठा, भी काफी लोग आते हैं कुछ कुछ बोलते हैं, फिर भी काफी लोग आते कुछ बोलते क्या? तुस तो धर्म बदल लिया, चले गए। तुस तो चर्च चले गए। कोई एक ही बात कहते, मैं उन्होंने कोई गल जब वो कही, मुझे बोलती है पढ़ा लिखा पागल हो जब कहते कि पढ़े लिखे पागल हो गया, कोई एक ही बात बोलता, मैं उन्होंने कोई गल मैं कही, तो पागल सही, मैं तो पागल ही तो सही, पीछा छोड़ो, और तुसी मेरा पीछा अपने छड्डो, बच्चों को हटा लो, अपने बच्चों को हटा मुझे लो, पीछा छोड़ो। मेरा पीछा छड्डो। हालेलुया। हालेलुया। या तो लोग आपको पीछे कर देंगे या तो लोग ਤੁਹਾਨੂੰ पीछे कर या देंगे, खुद पीछे हट या जाएंगे। खुद पीछे हट एक को जाएंगे, तो पीछे हटना एक पड़ेगा, ਨੂੰ तो पीछे हटना पवेगा, एक को तो हटना एक पड़ेगा। ਨੂੰ तो हटना कुछ पवेगा। दिन के बाद वो पीछे हट गए। कुछ दिनों के बाद वो पीछे हट गए। जब प्रभु को ये अच्छा सा लगा ਜਦੋਂ प्रभु ने चंगा लग्या कि तो बंदा कुछ मजबूत बंदा कि ये तो बंदा कुछ मजबूत टाइप का बंदा है, को क्या बता रहा था, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ 30 साल पहले प्रभु ने मुझे भी एक आज्ञा दी। 30 साल पहला प्रभु ने ਮੈਨੂੰ आज्ञा ਦਿੱਤੀ। प्रभु ने क्या आज्ञा दी, प्रभु ने ਮੈਨੂੰ ਕੀ आज्ञा ਦਿੱਤੀ? बेटा बेटा एक काम करेगा, एक काम करेगा, उसी अंधेरे कमरे के बीच में से रोशनी के बीच में से ਉਸੇ प्रभु बोले, ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, "My son, ਮੇਰੇ बेटे will you do my work?" ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, आज्ञा का पालन करेगा। मेरी आज्ञा का पालन करेगा? मुझे बताओ, मैं कहा कि प्रभु जी दसो। मैंने सोचा कि और बड़े स्कूल का प्रिंसिपल मैं क्या हो सकता प्रभु ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ? मैं कहा प्रभु जी बताओ। मैं कहा कि प्रभु जी दसो। प्रभु ने कहा बेटा प्रभु ने क्या बेटा मेरी फसलों को काटना है। मेरी फसलों ਨੂੰ तू कटना है। मैं समझ नहीं पाया मैं समझ नहीं पाया कि बेटा आया था, क्योंकि मैं नवा नवा सी। मैं कहा, प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रहा, मैं कहा कि प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रहा। बेटा तू मेरी सेवा करेगा, बेटा तू मेरी सेवा करेगा, ये सब कुछ छोड़ दे। ये सारा कुछ तू छड़ दे। मैं थोड़ा सा निराश हो गया मैं थोड़ा जा निराश हो क्योंकि गया मैं एक बढ़िया परिवार का बेटा था। क्योंकि मैं एक बनिया परिवार का बेटा था बढ़िया लोग पैसे से बड़े और बनिए लोग पैसे दे नाल बहुत प्रेम करने वाले ने, मुझे करता था। पर मैं पैसे नाल प्रेम नहीं करता मुझे सी। कोई लालची ना समझे, मैनू कोई लालची ना कि समझे, लालची समझकर कोई फिर से ना बुलाए। कोई लालची समझ के फिर तो ना बुलावे। पता नहीं पास्टर जी की फीस कितनी ये होगी, पता नहीं पास्टर दी फीस कितनी होएगी। अरे कोई फीस नहीं, मेरी कोई फीस नहीं, जिसको जो अच्छा लगे वो दे सकता है, जिन्नू जो चंगा लगे वो दे सकदा उसको जाके दान पात्र में डाल देते हैं। उस नु जाके दान पात्र दे विच पा। अरे प्रभु को कहा प्रभु जी मैं क्या ये कि तो- प्रभु जी ये तो थोड़ा मुश्किल है। ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। प्रभु जी मेरे पास इतना बड़ा स्कूल, प्रभु मेरे को इतना बड़ा स्कूल, 6,000 रुपए तनख्वाह, 25,000 रुपए मेरी तनख्वाह, SDM के बच्चे मेरे पास पढ़ते, एसडीएम के बच्चे तक मेरे स्कूल में पुलिस पढ़ते, अफसरों के बच्चे मेरे पास पढ़ते, पूरे एसएचओ के बच्चे मेरे स्कूल में मेरी पढ़ते। कितनी इज्जत है प्रभु। मेरी कितनी इज्जत है थे। प्रभु ने फिर कहा प्रभु ने फिर किया, मेरा काम करो, मेरा काम करेगा, फिर आज्ञा दी फिर आज्ञा देती, तो मेरा काम कर, तू मेरा काम कर, तुझे दुनिया की कुछ कुछ जगह इस्तेमाल मैं तेन दुनिया के कोने कोने ते ले जाके इस्तेमाल करा। की कंडीशन रखी। मैं प्रभु ने एक कंडीशन रखी प्रभु आपकी बात आज ही मानूंगा, कि प्रभु मैं तुम्हारी गल आज ही मान लवांगा। मेरी भी
कंडीशन है। देख मेरी भी कंडीशन है। प्रभु ने कहा बोल बेटा। प्रभु ने क्या कि बोल बेटा। मुझे कहा जहाँ पे मैं जाऊँ, मैं क्या कि प्रभु जी जिथे मैं जावां, मेरे कदम जाए, जिधर मेरे कदम जान, मेरे साथ चलना है, मेरे नाल तुसा चलना है, साबित करना है, साबित करना है, साबित करना है साबित करना कि है आपने मुझे चुना है। कि तुसा मैनू चुनिया है। प्रभु ने कहा जाओ, हो गया प्रभु स्वीकार। ने क्या कि हो गया स्वीकार। फिर प्रभु ने मुझ पर एक और कंडीशन फिर देखी। प्रभु ने मेरे ऊपर एक और कंडीशन लगाई। कंडीशन है, प्रभु ने क्या मेरी कंडीशन है, जैसे मैं तुझे चलाऊं जिद्दां मैं तेनू चलावां उस तरह चलना है। उस ढंग नाल चलना है। ठीक है प्रभु, मैं क्या कि ठीक है प्रभु, उसी तरह चलना। उसे ठीक ना चलांगा। 30 साल की आज्ञा दी, जब प्रभु ने 30 साल पहले आज्ञा दी, स्कूल की नौकरी छोड़ी, स्कूल दी नौकरी नु छड़िया, की सेवा में निकला। प्रभु दी सेवा विच निकल आया। उस मुझे बहुत अच्छे से पकड़ता कि पास्टर एरिक मसीह उनके पास सेवा की। 2 साल पहले प्रभु दे बहुत चंगे सेवा पास्टर एरिक मसीह दे कोल रहा, उनके साथ सेवकाई की, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, बहुत कुछ सीखा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। उनके आशीर्वाद से ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ मुझको एक अलग से सेवकाई। ਪ੍ਰਭु ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਬਖਸ਼ੀ। जब मैं सेवकाई करते कई बार उनका विरोध करने लग जाता है। ਸੋ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। उनको सिखाया, जिन्होंने उनको चलना सिखाया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰਭु ਚ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, लोग उन्हीं का विरोध शुरू कर ਕਈ दिया। ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। दुष्ट आत्मा की चालाकी, ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ आत्मा ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। साल उनका आशीर्वाद की करते अलग से सेवकाई। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। सुरसुर के सच को 3 लोग होते थे। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਸੀ। प्रभु कहता, प्रभु किसी चर्च का मेंबर टूट के नहीं आना ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चाहिए। ये लोग चाहिए। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। कलीसिया बढ़कर 13, 30, 300 आज 1000 रजिस्टर्ड मेंबर। ਸੋ 3 ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 13 ਹੋ ਗਈ, 30 ਹੋ ਗਈ, 300 ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। 400 कितना कमी करना है। ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, प्रभु जी 4 मंजिला बेटा ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰੇਟ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। प्रभु का कई एकड़ जमीन दिलवा रहा है। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿਲਵਾ ਰਿਹਾ। उसके प्रभु जी बड़ी जगह चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सब साइकिल हुआ करता। ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ये भी 30 सालों की बस वो साइकिल ਹੁਣ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। जिनका 70 किलोमीटर से खाई ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੇਵਕਾਈ करदा ਸੀ। बड़ी दिक्कतें तो आई। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ, प्रभु की बात कही, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ आपने मुझे ਕਿ बुलाया, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, चला आया, ਮੈਂ ਚਲਾ ਆਇਆ, क्या क्या को माना, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, पीछे नहीं जाऊंगा, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। कुछ भी हो जाए ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ पीछे ਜਾਵੇ, नहीं जाऊंगा। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। पापा जी मुझे उस बात की बात पूरी ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। कभी 4 भाई हैं। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਭਰਾਵਾਂ, पापा जी मुझे बुलाया, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, तो ये काम करेगा ना, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं दूंगा। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। 40-50 लाख रुपया आता है, 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, 1 रुपया नहीं दूंगा। 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। कर देता ਮੈਂ हूँ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। जो प्रभु जी बताए मुझे उसकी आज्ञा को मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ਸੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 30 सालों की प्रभु की सेवकाई ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ, शिखर से 1 रुपया नहीं लिया। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, मुझे कुछ चर्च में कुछ जो ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ। 30 साल मुझे आज्ञा दी, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, उसकी आज्ञा मानी, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, आज तक उसकी आज्ञा को माना। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। खुदा की बरकत दी। ਉਸ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। खुदा किसी को खुद कहता है ये पृष्ठा में सबसे बड़ा चर्च ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਹੈ। उसकी कृपा हुई। ਓਏ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। आप आज्ञा को मानेंगे, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, उससे बरकतें पाओगे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਪਾਓਗੇ। आज का विषय क्या था? ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਸੀ? प्रभु की आज्ञा मानने का फल। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ। जितनी आज्ञा मानते जाओगे, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਾਓਗੇ, प्रभु की आज्ञा में रहोगे, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, बरकतें भर भर के आएंगी। ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ बरकतें ਆਉਣਗੀਆਂ। आपके एड्रेस को ढूंढती आएंगी। ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ, ਪਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ। आपके एड्रेस को ढूंढती आएंगी। ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। चंगाई आपको ढूंढती आएगी। ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਆਵੇ। आपको चंगाई वाले लोगों को ढूंढना नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, चंगाई आपको ढूंढेगी। ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। चंगाई आपको ढूंढेगी। चंगाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭेगी। पढ़ी। याद रखें, जो कुछ परमेश्वर और उसके दास करने को कहें, उसकी आज्ञा का पालन किया करो। अगर प्रभु जी आपके जीवन रूपी किश्ती में आ गए तो फिर प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन को चलाया करें। परमेश्वर की आज्ञा टूटे ना तो यीशु रूठे ना। आपने वो नहीं करना जो संसार करने को कहे,
जो आपके मित्र दोस्त आपके करने कहें, बल्कि आपको वो करना है जो आपको परमेश्वर और उसके दास करने को कहें। परमेश्वर चाहे तो हमें बिना कुछ आज्ञा का पालन करवाए भी बरकत दे सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहले हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जैसे आपको बड़ों की, अपने माँ बाप की, अपने टीचर की आज्ञा मानने का फल मिलता है, तो फिर परमेश्वर की आज्ञा मानने का फल आपको कितना मिलेगा। प्रभु जी चाहते तो थे शमौन को झील के किनारे भी मछलियां दे सकते थे, लेकिन प्रभु ने उसको आज्ञा देकर परखा कि मेरी आज्ञा का पालन ये करता है कि नहीं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे तो फिर आपको भी परमेश्वर से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप सब कामों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया करें, अपने खाने पीने में, अपने कपड़े पहनने में, अपनी शादी करने में, अपने बच्चों की शादी करने में, कोई भी काम धंधा करने में, घर बनाने में, हार श्रृंगार करने में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया करें। आज्ञा मानने से परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर हमें तरक्की देता है, परमेश्वर हमारी इज्जत बढ़ाता है, हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। एक अच्छा मसीह कभी परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर नहीं जाता, हमेशा परमेश्वर के वचनों में बना रहता है। कभी वो नशा नहीं करता, कभी व्यभिचार नहीं करता, कभी रिश्वत नहीं लेता, कभी लालच नहीं करता, कभी किसी का पीछा नहीं करता। काफी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना तो पसंद नहीं करते, वैसे वे चमत्कारों के पीछे भागते रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला विश्वासी कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी पर दोष नहीं लगाता, किसी की बुराई नहीं करता। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने से दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, परेशानियां, घाटा और गरीबी हमेशा आपके पास ही रहेगी। आपको परमेश्वर से बरकत पाने के लिए ना तो कोई चर्च बदलने की जरूरत है, ना बपतिस्मा बदलने की जरूरत है, ना अपना घर बदलने की जरूरत है, ना आपको अपने कपड़े बदलने की जरूरत है। केवल आपको परमेश्वर की और उसके दासों की आज्ञा में चलने की जरूरत है। ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी बरकता पाने ਦੇ ਲਈ अपने चर्च ਨੂੰ बदलਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, अपने बपतिस्मे ਨੂੰ बदलने की जरूरत नहीं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। सिर्फ उस परमेश्वर की आज्ञा को मनने की जरूरत है। जैसे हम परमेश्वर से आशीषों की उम्मीद करते हैं, वैसे परमेश्वर भी हमसे उसकी आज्ञाओं पर चलने की उम्मीद करते हैं। याद रखें, परमेश्वर की बरकतें उसकी आज्ञा का पालन किए बिना कभी नहीं आपको मिलेंगी। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे तो परमेश्वर आपके साथ साथ आपके मित्र दोस्तों, आपके रिश्तेदारों को भी बड़ी आशीष देगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे तो फिर परमेश्वर आपके साथ साथ आपके मित्र दोस्त, आपके रिश्तेदारों को भी श्राप देगा। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तब तक आप जितने मर्जी पास्टर से ले हैंड प्रेयर करवा लो, आप कुछ भी करवा लो, कहीं भी चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कितने लोग कहते हैं कि ऐसे ले हैंड प्रेयर करावांगे तो ऐसे चंगे हो जावांगे। कितने लोग 20,000 पे जाके ले हैंड ले देंदे ने। कोई परमेश्वर का कम नहीं। एक विश्वासी जड़ा खुद तो परमेश्वर के वचनों ते चलदा नहीं, बपतिस्मा ले रखा प्रभु बोझ लेंदा नहीं, अपने सेवका की खिलाफत करदा है ते दूर दूर जाके ले हैंड प्रेयर करवांदा है, ले हैंड ते पैसे भी दे देंदा है, कुछ नहीं मिलन वाला। जब तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तब तक जितने मर्जी गले में क्रॉस पहन लो, जितने मर्जी सफेद कपड़े पहन लो, जितने मर्जी आप लंबे लंबे बाल रख लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। काफी प्रचारक लोगों को ज्यादा आशीषों का प्रचार करते हैं, चंगाइयों का प्रचार करते हैं, लेकिन वे लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना नहीं सिखाते। काफी प्रचारक लोग अपने प्रचार विच कहंदे कि बरकता आ रही ने, चंगाइयां आ रही ने, पर वचन की पालना करना बहुत घट लोग सिखाते ने। सो वचन नु ना तोड़ो, एक बहुत घट सिखाते ने। कोई सिखांदा नहीं कि तुसी संडे चर्च रेगुलर जाया करो, कोई नहीं सिखांदा कि तुसी बपतिस्मा नहीं लेके बचना लो, कोई सिखांदा नहीं कि प्रार्थना सवेरे और शामी 1-1 घंटा जरूर करया करो।
करो। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। कुछ सिखाता है अपनी अपनी चर्च में जाया करो। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। उनको बस भीड़ चाहिए, कहीं से भी आ जाए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਭੀੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, कहीं से भी आ जाए। ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। सही रास्ते पर कोई भी चलना सिखाते नहीं। ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। इस चर्च के लोग को साफ हिदायत देते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। कोई भी किसी के चर्च के मेंबर को तोड़ के खाएगा, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, उसको 500 रुपये जुर्माना। ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। हम अपनी संगत को साफ बोलते हैं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ संगत ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। अपनी चर्च का मेंबर कहीं जाए ना, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, किसी दूसरे चर्च का मेंबर इतने आए ना, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨਾ, अपना कहीं जाए ना। अपना कहीं जाए ना, और दूसरा किसी का और दूसरा किसी का। आप सभी सिस्टम बनाओगे, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਓਗੇ, बनाओगे, अपनाओगे। अपना किते जाए ना, अपना कहीं जाए ना, ते दूसरा किसी का। और दूसरा किसी का। अगर सारे सिस्टम बना ले, अगर सारे के सारे ये सिस्टम बना लें, कोई भी कलिशा बरकतों से खाली नहीं होगी। कोई भी कलीसिया शिशना खाली नहीं रहेगी। आज विश्वासी सेवक के वचन पर चलते क्यों नहीं? आज विश्वासी सेवका दी वचना दी पालना क्यों नहीं करते? इसलिए कि विश्वासी को इस चर्च में होना चाहिए, उस चर्च में नहीं है। इसलिए कि विश्वासी नु जिस चर्च विच होना चाहिए आज उत्थे नहीं है। पास्टर कहते हैं कलिशा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती। पास्टर लोग कहते हैं कि कलीसिया मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती। कारण क्या? कारण की पास्टर के पास जो लोग होने चाहिए वो नहीं, पास्टर को जड़े लोग होने चाहिए वो लोग नहीं। पास्टर के जो खुदा ने लोग दिए थे वो कहीं और जाते हैं। पास्टर नु जड़े लोग खुदा ने दिते सी वो किते होर जा रहे ने। लोगों को जिस कलिशा को प्रभु ने दिया था वो उसमें नहीं है। विश्वासियों नु जड़ी कलीसिया खुदा ने दिती सी ओथे नहीं है। है टावर की कलिशा में एक भी मेंबर किसी दूसरी चर्च का नहीं रखा जाता। प्रेयर टावर दे विच नु दूसरी किसी भी चर्च दा मेंबर जड़ा नहीं रखा जाता। लुधियाना का एक भी पास्टर साबित कर ले कि प्रेयर टावर लुधियाना के अंदर किसी दूसरी चर्च के मेंबर को तोड़ के रखा जाता है। लुधियाने दे कोई भी सेवक है साबित कर देन कि प्रेयर टावर जड़े की दूसरे चर्च दे मेंबर नु तोड़ के अपने चर्च विच रख दे। अक्रम बाकियों की तरह टूटे फूटे लोग भी रखना शुरू कर दे। जेकर ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। अपनी संगत को इजाजत दे दे। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਈਏ। लाओ तोड़ तोड़ के लाओ, जितने मर्जी लाओ। ਲਿਆਓ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। हर एक संडे को 20,000, 25,000, 30,000 लोग हो जाए। हर संडे ਨੂੰ 20,000 25,000 30,000 लोग इकट्ठे हो जाए। भीड़ इकट्ठी करना कोई मुश्किल नहीं। भीड़ इकट्ठी करना कोई मुश्किल नहीं। आपको भीड़ नहीं भेड़े चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੇਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। काफी विश्वासी लोग बिना परमेश्वर के वचनों पर चले सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि बिना कुछ किए हमें कोई जादूगर पास्टर मिल जाए तो बस सिर पे हाथ रखे और हमें बरकतें मिल जाए। कुछ ना पड़े, करना सानू कुछ ना पवे, ना चर्च जाना पड़े, ना सानू चर्च जाना हाँ पवे, प्रार्थना करनी, ना सानू प्रार्थना करनी पवे, वचन पढ़ना ना में सानू वचन पढ़ना कोई पवे। जादूगर पास्टर ऐसा मिल जाए कोई जादूगर पास्टर सानू ऐदा दा मिल ठहरा जाए के बस ले हैंड प्रेयर करेंगे, जेड़ा कहणगे बस ले हैंड प्रेयर कीती जाएगी। 20,000 रुपए लगेगा। 20,000 रुपए लगेगा। इतना दा बाबा चाहिदा ऐदा दा बाबा चाहिदा ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਵਚਨ ਪੜਨਾ ਪੜੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾ ਪੜਨਾ ਪਵੇ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪੜੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੜੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ 10 ਪਾਸ ਦੇਣਾ ਪੜੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। बस इको बार पैसा दे दो, ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਈਏ। ले हैंड कोई कर दे। ले हैंड ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ अगर ਦੇਵੇ। पोस्टर छप जाए फला फला जगह ले हैंड प्रेयर करने वाला बाबा आ रहा है, जगह पोस्टर लग जान के फलानी फलानी जगह ते ले हैंड करने वाले बाबा जी आ रहे ने, सारे छोड़कर भाग जाए, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, सारे भाग जाए। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ अच्छा ले हैंड वाला बाबा ਕਿ ਅੱਛਾ ले हैंड वाले बाबा सब भाग जाएंगे। ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। इसलिए बरकतें नहीं, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, इसलिए लोग के घरों के झगड़े खत्म नहीं हो रहे, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, इसलिए कमाइयों में बरकत नहीं। ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। एक पति पत्नी के कितने पति होते हैं? ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? दो। ਦੋ। एक बच्चे के बाप कितने होते ਇੱਕ हैं? ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? एक
कि दो ਕਿ ਦੋ एक बच्चे के स्कूल कितने होते ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो एक विश्वासी के चर्च कितने ਇੱਕ होने चाहिए ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ तो फिर ले हैंड कितने पास्टरों से करानी ਤੇ चाहिए ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ अपने सेवक से ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੇਵਕ आपका अपना सेवक जो आपके काम आ सकता है कोई दूसरा नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਸੇਵਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ आपका अपना सेवक आपके लिए जो कुछ कर सकता है पास्टर गुप्ता पास्टर शर्मा पास्टर वर्मा कोई नहीं कर सकता ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ कोई लालच नहीं दोबारा भी कोई बुलाए ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇ लेकिन खुदा की ड्यूटी जो कहा को कहकर जाए पर परमेश्वर ने जो किया रूह ने किया वो कह के जाना परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला पहुंचे कहीं का कहीं विश्व की आज्ञाओं पर चलने वाला परमेश्वर की आज्ञावां ते चलने वाला पहुंचे कहीं का कहीं पहुंचे किते दा किते उसकी आज्ञा को तोड़ने वाला ते उस दी आज्ञा नु तोड़न वाला रहे वही का वही रहे उथे दा उथे रहे उथे ना उथे रहे उथे दा उथे और जो आज्ञाओं का पालन करता है जेकर परमेश्वर की आज्ञा दा पालन करांगे पहुंचे कहीं का कहीं तब पहुंचे कहीं का कहीं कहीं का कहीं कहीं का कहीं साइकिल से स्कूटर साइकिल से स्कूटर स्कूटर से स्कूटर तो 4 पहिए वाली गाड़ी 4 पहिए वाली गाड़ी को पिछले दिनों एक पकवाड़ा के सिस्टर ने बोला ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ पास्टर जी आपको इनोवा गाड़ी लेकर दे ਪਾਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ मैं क्या सिस्टर जी गाड़ी तो हमारे पास है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ है प्रभु ने बोला ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ मेरे दास को इनोवा गाड़ी लेकर ਇਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ सिस्टर जी इनोवा गाड़ी तो बहुत महंगी है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ 30 लाख रुपया अलग रख ਕਹ लिए ਰਹੇ ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ हो? और वो सिस्टर कल वीरवार को वो गाड़ी लेकर लुधियाना आ रही ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ उसके आज्ञाओं पर चलने वाला उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला पहुंचे कहीं का कहीं पहुंचे कहीं का कहीं और उसकी आज्ञाओं को तोड़ने और वाला उसकी आज्ञाओं को तोड़ने वाला रहे रहे वही का वही साइकिल का साइकिल पे रहे साइकिल साइकिल पे साइकिल पे वही का वही